Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you will be in good health condition. For your safety measures, stay home and stay safe. I am Fawad Ahmed, your science teacher. Last week we have discussed the whole digestive system process and its abnormalities which happen after it. So I hope you all have gone through it in your book and you will have no difficulty in it. Our next lecture is respiration and energy from food. So when we eat food, in previous chapter we have discussed it in details that how much processes it's going through, but how the energy is obtained from that food, we will discuss it in this chapter. I will just give you a clue and a simple logic. In plants, we have a reaction called photosynthesis. So in photosynthesis, plant make their own food. So respiration is the opposite of the reciprocal of photosynthesis. When we reverse the reaction of photosynthesis, it becomes respiration. So now you have an easy idea for understanding of respiration. In human, energy for life comes from a chemical reaction between food and oxygen called aerobic respiration. इंसान के लिए जो ज़िंदा रहने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक केमिकल रिएक्शन से आती है जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. एरोबिक रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सेलुलर एनर्जी इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन. इट इन्वॉल्व थ्री प्रोसेसेस इन द ह्यूमन बॉडी. Oxygen is taken to the cells of the body by the blood. Energy is released by the reaction of the dissolved food and the oxygen. Carbon dioxide and water are taken out back to be breathed out of the air. एरोबिक रिस्पायरेशन में जो सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसमें ऑक्सीजन होता है. ओके, सो एरोबिक रिस्पायरेशन में तीन मेन प्रोसेसेस होते हैं. फर्स्ट ये है कि उसमें ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है और वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है हीमोग्लोबिन के थ्रू. नंबर 2, इससे एनर्जी रिलीज होती है. जो डिज़ोल्व फूड होता है उससे एनर्जी रिलीज होती है और उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है. और नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी है वो जब हम एक्सहेल करते हैं उसके ज़रिए वो बाहर निकल आता है बॉडी से. तो ये तीन एरोबिक रिस्पायरेशन की प्रोसेसेस हैं. जो ग्लूकोज फाइनल प्रोडक्ट बनाता हमारी बॉडी के लिए उससे फर्दर ये रिएक्शन होता है एनारोबिक रिस्पायरेशन. फूड कैन आल्सो बी broken down without using oxygen. This is called anaerobic respiration. Breaking down of food release energy. We should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes. They get energy through anaerobic respiration. In the absence of oxygen, glucose breaks down into alcohol and carbon dioxide is given below. अब कुछ ऑर्गेनिज्म इस तरह है जो ऑक्सीजन के बगैर भी रिस्पिरेशन करते हैं जिसको एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं. सिंपल ये है कि एरोबिक रिस्पायरेशन वो है जो ऑक्सीजन के ज़रिए होता है और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन वो है जो ऑक्सीजन के बगैर होता है. ये रिएक्शन जो यीस्ट होता है जब हम आटे के साथ उसे मिलाते हैं और उसके बाद आटा गूंथता है उसको यीस्ट कहते हैं. तो यीस्ट की जो बैक्टीरिया है उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है वो एनारोबिक तौर पे होती है और इसको हम एनारोब्स भी कहते हैं. ये रिएक्शन दिया हुआ है ग्लूकोज, इससे अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. अगर यीस्ट की हम फर्मेंटेशन करते हैं तो उससे अल्कोहल बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है उससे. Our muscle cells can also respire anaerobically but only for a short time. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high but the supply of oxygen to produce the energy is limited. Then anaerobic respiration take place in the muscle cell to fulfill the demand of energy. अच्छा, हमारे मसल में भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. जब हम कोई हेवी काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या हम घंटों वॉक करते हैं या कोई हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारे
सांस फूलना शुरू हो जाती है, उस वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की मकदार चाहिए जो एनारोबिक तौर पे होती है हमारे मसल्स के दौरान। तो ग्लूकोज जो होता है मसल में, वो उससे लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी बनती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इसको एनारोबिक में लेते हैं। In order to respire, the body first requires a supply of oxygen. Oxygen is obtained from the air. The air passes through down the windpipe or trachea. On the way air goes through the voice box or larynx, it contains thin membrane called vocal cords. When we speak, air passes through it and makes them vibrate and produce sound. The windpipe branches into two tubes called bronchi. Both of them are attached to the lungs. Each bronchi split up to bronchioles. Eventually, each bronchioles end in a microscopic air sacs called alveoli. Each lungs contain millions of alveoli. Oxygen from the air breathed in dissolve in the moisture of the surface of the alveoli and pass through their thin walls in the blood capillaries. At the same time, carbon dioxide passes from the blood capillaries is birthed out of the body. अच्छा, ये प्रोसेस किस तरह होता है? सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। जब ऑक्सीजन हम एयर से ऑब्टेन करते हैं थ्रू नोज या थ्रू माउथ, सो ये वॉइस बॉक्स जो लेरिंग्स है, जो डायग्राम में राइट साइड पे दिया हुआ है वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स, उसके ज़रिए नीचे जाता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो जब हम कोई चीज़ बोलते हैं, कोई बात हम करते हैं, तो हवा इसके अंदर गुजर जाती है और वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वाइब्रेशंस के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है जो एंड प्रोडक्ट में वॉइस की शक्ल में बाहर आता है। फिर इसके बाद जो विंड पाइप है हमारा, जो हमारे दो पाइप थे, एक फूड पाइप था, एक विंड पाइप था। ये मैंने आपको क्लास में मॉडल के ज़रिए दिखाया था लैब में कि विंड पाइप कौन सा है और फूड पाइप कौन सा है। तो जो विंड पाइप है, इसके नीचे दो ट्यूब्स हैं, दोनों को ब्रोंकाई कहते हैं और दोनों अलग अलग राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के साथ कनेक्टेड है, ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई के बाद छोटे छोटे ब्रोंकियूल्स आ जाते हैं। अगली स्लाइड में एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसमें आपको ब्रोंकियूल्स और ब्रोंकाई नज़र आएंगे। अच्छा, ब्रोंकियोल्स के एंड पे फिर सेक्स होते हैं, सेक्स बैग्स को हम कहते हैं। शॉपर नहीं होते, इस तरह के बैग्स होते हैं, और हमारी लंग्स के अंदर जो बैग्स होते हैं एयर सेक्स, उसको हम अलविलाई कहते हैं। अलविलाई के अंदर हवा जमा हो जाती है और इसके अंदर ऑक्सीजन रह जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बॉडी से बाहर आता है। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिनकी स्टेमिना बहुत ज़्यादा होती है, तो उनमें अलविलाई की मिकदार ज़्यादा होती है। जब अलविलाई ज़्यादा होती है तो वो काफ़ी टाइम तक काम करते हैं, तो उनका सांस नहीं फूलता, क्योंकि वो उसमें कैपेसिटी होती है हवा फिल करने की। जो लोग स्मोकिंग करते हैं या वो एक्सरसाइज नहीं करते, जो फैटी होते हैं, वो अगर 2-3 कदम भी चल जाए तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी लंग्स में अलविलाई की मकदार कम होती है, एयर सेक्स, तो वो जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। जितनी भी बैग्स होते हैं तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है, वो चढ़ाई पे नहीं चढ़ सकते। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, मोस्टली हमें वॉक करना चाहिए, ताकि हमें हमारे एयर सेक्स ज़्यादा होंगे जितने, तो हमारी स्टेमिना उस हिसाब से ज़्यादा होंगी। ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं। जैसे ये हवा नीचे जा रही है तो लंग्स में ये जो छोटे छोटे ये बड़ी जो पाइप्स नज़र आ रहे हैं, ये तो एक ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकियूल्स है, छोटे छोटे ब्रोंकियूल्स है, और उसके अंदर फिर एयर सेक्स हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि एयर सेक्स बिलियंस की तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं और वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए हमें वो नज़र नहीं आ रहे इसमें। Respiration release energy from food. The oxygen that we inhale break down glucose into carbon dioxide and water. This release the energy. Food plus oxygen is equal to carbon dioxide plus water plus energy. For example, when we exercise, our muscle do not have enough oxygen, therefore the muscle break down the food without the oxygen. Breathing is a process of respiration during which oxygen is inhaled and carbon dioxide is released. Human and animals use lungs as the respiratory organ. Earthworm breathes through its skin and fish uses its gill. Plant use their leaves and roots to take in air. अच्छा, ऑलरेडी हमने रिस्पिरेशन के बारे में काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन रिस्पिरेशन में जो हमारा खुराक होता है इसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। इसको हमने पीछे पढ़ा कि एरोबिक रिस्पिरेशन है। फिर हमारे मसल में ऑक्सीजन के बगैर भी एनर्जी रिलीज़ होती है या ऑक्सीजन तो वो उसे हम एनारोबिक कहते हैं।
अच्छा, ह्यूमंस और बहुत से एनिमल्स जो है इनमें रिस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है, लेकिन अर्थवर्म जो है वो स्किन के ज़रिए रिस्पायर करता है। जो फिशेस होते हैं ये गिल्स के ज़रिए रिस्पायर करते हैं, और जो प्लांट्स हैं ये अपनी लीव्स के ज़रिए या रूट के ज़रिए करते हैं। उसमें टाइनी होल्स होते हैं जो हमने डिस्कस किया था, जो स्टोमेटा होते हैं उसके ज़रिए वो रिस्पायर करते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी मसला हो किसी भी पॉइंट पे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों ने नहीं पूछा, इट मीन्स कि आप लोगों को पूरा लेक्चर क्लियर था। नेक्स्ट मैं ये अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए और आप मुझसे पूछ लें या आप मुझे सजेशन दें फीडबैक में कि मैं उसमें और क्या एडिशन करूँ ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि क्लास में जो टीचर मैं होता हूँ बाई सेल्फ, तो आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं तो मैं आपको आंसर स्ट्रेट अवे कर देता हूँ। यहाँ पर वो हमारा जो मीडियम है वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड हो या आप जनरल भी पूछ सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, या कोई कंसेप्चुअल चीज़ हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, आपका पिछला होमवर्क असाइनमेंट मुझे अभी तक नहीं मिला। आई होप कि आप लोगों ने अपने नोटबुक में लिखा होगा, लेकिन आप लोगों ने अगर किया है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस लेक्चर के रिप्लाई में पिछला जो होमवर्क असाइनमेंट था उसकी पिक्चर मुझे भेज दें ताकि मैं देख सकूँ कि आप लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, your next homework assignment is what is the another name used for voice box, how exchange of air take place in lungs. So this is your second assignment. So the same procedure which I have told you, you have to do it like that, and take it and write it in your record, and I will check it when the school will open inshallah. Thank you.